Good morning, everyone. I, Shikhar Bhardwaj, on behalf of Pracolearn, welcomes you all to the webinar on classification under GST. I would request all the participants to please put their cameras and mic off. Put your camera off and your mic on mute. Thank you. Let me introduce to the organization first. Pracolearn is a project of the Saxenas and Kumar Law Chambers, which is a law firm established in the form of limited liability partnership, working in areas of legal consultancy, practical implication of law and litigation in various fields, along with paralegal services. Pracolearn has a motto to holistically cover all practical aspects which are quite necessary in professional world. It imparts and focuses on practical learning of subjects and thus act as a bridge that fills the gap between knowledge of both theory and practical aspects to its various courses. It is committed to train the students and spread the knowledge of practical implications and therefore which are used in daily routine by the professionals and in other fields as well, to make them accomplished professionals and to help them achieve various career goals. The distinguished speakers for today's webinar on classification under GST of COVID-19 products, hand sanitizers, are Mr. Bharat Agrawal and Mr. Abhinav Saxena. Let me introduce to you to the distinguished speakers. Mr. Bharat Agrawal. Mr. Bharat Agrawal is an alumnus of Gujarat National Law University, having experience of more than 6 years in the field of indirect taxation, excise, service tax, goods and services tax, customs and foreign trade, income tax, company matters, both advisory and litigation. He also got an opportunity to work upon the constitutional matters pertaining to taxation. The litigation has mostly been done in SASTAT, ITAT and NCLT and respective honorable high courts. He has also written more than 5 articles in different topics of taxation published in various journals of India. Our second distinguished speaker, Mr. Abhinav Saxena. Mr. Abhinav Saxena is a co-founding partner of Saxenas and Kumar Law Chambers LLP and is an alumnus of Gujarat National Law University. He is also the co-founder of Pracolearn. As an advocate, he has achieved wide range and years of experience in various matters. Before beginning with the webinar, I would request everyone to switch off their videos and mute their microphones throughout the session so that there is no disturbance to the distinguished speakers. However, you may drop or type your questions in the chat box given during the session. The questions sent by the participants in advance as well as those asked in the chat box will be addressed in the Q&A session that will be towards the end. I will tell all the participants when the Q&A session begins, so don't worry on that part. Now I will invite our distinguished speaker, Mr. Bharat Agrawal, to introduce the topic to all. Sir, I would request Mr. Distinguished Speaker Bharat to please unmute himself. Okay. Thank you, sir. Sorry, Shikhar. Let's begin. Good morning, everybody. Our topic for today's discussion is classification of COVID-19 products vis-a-vis hand sanitizers. As we all know that after the declaration of COVID-19 as a pandemic by the World Health Organization, there was sudden increase in the manufacturing of hand sanitizers, hand masks, and face shields. Due to which, there was a lot of uncertainty about the applicability of rate of tax on these products. That's why we decided that we should give a knowledge upon how to classify these kind of products so that a correct rate of tax should be applicable on it. So let's begin. Firstly, I would like to tell you that what is classification under goods and service tax. Classification होता क्या है? जैसे कि हम लोग समझते हैं क्लासिफिकेशन है कि किसी भी चीज को कैटेगराइज करना, किसी कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से हम देखते हैं, किस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं, उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन.
और गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कैसे क्लासिफिकेशन होता है ये मैं आपको बताता हूं। हमारा जो नोटिफिकेशन 1/2017 सीजीएसटी एक्ट का, उसमें एक टैरिफ आता है, जीएसटी टैरिफ। मैं मिस्टर शिखर को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो आप लोगों के सामने जीएसटी नोटिफिकेशन 1/2017 एक बार खोल के दिखाएं, जिससे कि मैं आपको और क्लियर कर दूं कि ये होता क्या है। मिस्टर शिखर सबसे ऊपर ले जाइए इसको। हाँ, अब आप ये देखिए कि ये जो इस यहाँ पे 6 तरीके के रेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, 6 शेड्यूल्स हैं, और हर शेड्यूल के लिए जो है अलग अलग रेट ऑफ टैक्स लिखा हुआ है। किसी के लिए 2.5% लिखा हुआ है, किसी के लिए 5% है, किसी के लिए 9% है, ठीक है। तो इसी तरीके से, और मिस्टर शिखर थोड़ा सा नीचे लाइए, नीचे लाते रहिए इसको। हाँ, अब आप ये देखेंगे कि हर गुड्स में कई तरीके के यहाँ पे गुड्स रखे हुए हैं। हर गुड्स के आगे जो है उससे पहले उनका चैप्टर हेडिंग लिखा हुआ है। आप कोई भी गुड्स उठा लीजिए, चाहे अपने आपके डेली यूज की कोई गुड्स हो या किसी भी तरीके का कोई भी सामान हो, वो आपको इस टैरिफ के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है शिखर। लेकिन प्रॉब्लम कब अराइज होती है कि जब हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं या हम बेच रहे हैं वो इस पर्टिकुलर टैरिफ में आपको नहीं मिल पा रहा, तब होती है सारी की सारी, उसके बाद सारा प्रॉब्लम अराइज होता है। जैसे कि हमारे केस में भी है हैंड सैनिटाइजर्स को लेकर, कि हैंड सैनिटाइजर्स के ऊपर रेट ऑफ टैक्स क्या होगा। अब कई लोगों ने कहा कि भैया इस पर 18% लगेगा, कुछ लोगों ने कहा नहीं इसमें 12% लगेगा। लेकिन ऐसा क्यों ना 18% लगेगा, 12% लगेगा? तो इस डिस्प्यूट को हम कैसे सुलझाएं, कैसे? देखिए, प्रॉब्लम कब अराइज हुई? प्रॉब्लम तब अराइज हुई जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक सर्कुलर आया 15 जुलाई 2020 को, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सर्कुलर दे हैव क्लासिफाइड द सेट प्रोडक्ट हैंड सैनिटाइजर एज डिसइंफेक्टेंट। इन्होंने कहा कि ये जो डिसइंफेक्टेंट है तो इस पे जो है 18% का टैक्स लगेगा। अच्छा, उससे पहले एक एडवांस रूलिंग्स आई थी स्प्रिंगफील्ड्स इंडिया गोवा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स की, जिसमें ये बताया गया था कि जो ये हैंड सैनिटाइजर्स हैं इस पे 18% टैक्स लगेगा, और इसको भी चैप्टर 38 में डाला गया था। तो उसके बाद एक कंफ्यूजन शुरू हो गया कि भैया इस पे क्या 18% ही टैक्स लगेगा, कैसा हो सकता है? तो मैं आपको ये बता दूं कि नहीं लगेगा 18%। इनके आप AAR को या सर्कुलर, इनके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के क्लैरिफिकेशन को माने ना माने, दैट इज ऑन यू, लेकिन ये आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अब बाइंडिंग क्यों नहीं है ये मैं आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है कि विद द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ ही कोई भी टैक्स आप पे लेवी हो सकता है और कलेक्ट किया जा सकता है। विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ आपके ऊपर कोई टैक्स थोपा नहीं जा सकता। जो MOF का जो क्लैरिफिकेशन आया है ये कोई लॉ नहीं है। कई लोगों को लगता है अरे यार ये तो क्लैरिफिकेशन आ गया, अब तो हमको 18% ही टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन नहीं। क्या ये लॉ है? ये लॉ नहीं है। क्यों नहीं है? अब मैं आपको ये बताता हूं। सेक्शन 9 जो हमारे CGST एक्ट का है, ये कहता है कोई भी अगर टैक्स लगना है तो सबसे पहले GST काउंसिल की रिकमेंडेशन होनी चाहिए, उसके बाद एक नोटिफिकेशन आएगा, और एज पर दैट नोटिफिकेशन ओनली एनी रेट ऑफ टैक्स वुड बी अप्लाइड ऑन द सेट प्रोडक्ट। लेकिन क्या हमारे इस केस में ऐसा हुआ है कि हैंड सैनिटाइजर्स के ऊपर कोई नोटिफिकेशंस आया हो? ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपको ये दिखाता हूं। मैं मिस्टर शिखर से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक CBIC की वेबसाइट पे एक वो उनको खोल के दिखाएं, ताकि हमारे जो यहाँ पे अटेंडीज बैठे हैं उनको अच्छे से और समझ में आ जाए। मिस्टर शिखर, इससे पहले वाली शिखर जो आप बोल रहे थे ना, ये नहीं खोलना शिखर। This one, sir. चलिए कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बात बता दूंगा
एक्चुअली देखिए, अगर आप CBIC की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे जो सेंट्रल टैक्स रेट का जो नोटिफिकेशंस का जो चार्ट अगर आप खोलेंगे तो उसमें 15 जुलाई 2020 के बाद का कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है कि जो ये कहता हो कि सैनिटाइजर्स के ऊपर 18% ये क्लैरिफिकेशन आया, उसकी वजह से मैं 18% देना शुरू कर दूं। टैक्स तो तभी लगेगा ना जब सेक्शन 9 के अंदर आप कोई नोटिफिकेशन इशू करोगे, तभी लगेगा, वरना तो लग नहीं सकता आपके ऊपर टैक्स। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये होगी, लोगों में घबराहट हो जाती है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का कोई भी ऑर्डर आ गया और उन्होंने कह दिया कि भाई इस पे तो इतना टैक्स लगेगा, तो सब घबरा जाते हैं कि भैया अरे यार इतना टैक्स कैसे लग जाएगा यार, इतना टैक्स लग रहा है। तो अब उसका क्या तरीका है? अब देखिए, आपकी जो सेक्शन 103 ऑफ CGST एक्ट है वो ये कहता है कि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स का जो ऑर्डर है वो सिर्फ उसी पे बाइंडिंग होगा जो जिस SSC ने वहां पे AAR में एप्लीकेशन डाली है कि भाई हम बताओ हमारा जो गुड्स है वो कहाँ क्लासिफाई होगा और कितना टैक्स देना पड़ेगा हमको। सिर्फ उस पे एप्लीकेबिलिटी होगी, और लेकिन और किसी पे भी एप्लीकेबिलिटी इसकी नहीं होगी। तो किसी भी एडवांस अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के किसी भी ऑर्डर से या फिर सर्कुलर से डरने की जरूरत नहीं है, वो कोई लॉ नहीं है। AAR का ऑर्डर कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है कि जिससे हम डरने लग जाए कि अरे यार AAR का ऑर्डर आ गया। ठीक है, फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आज के टॉप मेन जो हमारा जो प्रोडक्ट है हैंड सैनिटाइजर, इसकी क्लासिफिकेशन अब कैसे होगी। देखिए, जो मेन कंफ्यूजन था कि क्लासिफिकेशन हैंड सैनिटाइजर्स का किसमें होना चाहिए, इसके दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3808 और चैप्टर 3004। जैसे कि मिस्टर शिखर ने आप लोगों को एक PDF फाइल दिखाई थी, उसमें सारे के सारे पूरा टैरिफ है GST का, तो उसमें आपको ये दो चैप्टर्स में मिल जाएंगे। अब जो MOF का जो सर्कुलर था और या फिर जो AAR का जो ऑर्डर आया है उसमें इन्होंने 3808 में डाला है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, ठीक है, और कहा है डिसइंफेक्टेंट है। मैं एक बार आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं कि चैप्टर 3808 कहता क्या है। चैप्टर 3808 के अनुसार 18% टैक्स लगना चाहिए इन प्रोडक्ट्स पे, सच एज इंसेक्टिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, फंगिसाइड्स, herbicides, anti-sprouting products and plant growth regulators, disinfectants and similar products। ठीक है जी। और 3004 क्या कहता है? Medicaments consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic use put up in measured doses। ठीक है, ये कहता है। तो अब हम जो है, अब मैं तो अगर जैसे बिजनेसमैन हूं, अगर मान लो मैं अगर ये चीज बता रहा हूं और मेरे को अगर रेट ऑफ टैक्स डिसाइड करना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं GST का टैरिफ खोलूंगा, है ना। मैंने ये दोनों एंट्री पढ़ी, क्या एक इसके अलावा इसके साथ एक दो एंट्रीज मैंने और पढ़ी। अब मेरे को लग रहा है यार ये डिसइंफेक्टेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर डिसइंफेक्टेंट है तो मेरे को 18% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन फिर मेरे को लग रहा है यार ये मेडिकामेंट भी हो सकता है, तो भी मेरे को जो है इसमें तो मेरे को मेरा टैक्स बच जाएगा, तो मेरे को 12% टैक्स देना पड़ेगा। तो मुझे ये लगा कि भाई चलो उसमें तो मेरे को 12% जो है वो मेरे फेवर का है, तो मैंने 12% टैक्स लगा उस पे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट का जब हम रेट ऑफ टैक्स देखते हैं, कोई भी हेडिंग देखते हैं, तो हमारा जो है उसमें एक बेसिस भी होना चाहिए, हम किस बेसिस पे इस प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम 3004 को पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है मेडिकामेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ मिक्स्ड और अनमिक्स्ड प्रोडक्ट्स फॉर थेरापेटिक और प्रोफिलैटिक यूज। अब इसका मतलब क्या है थेरापेटिक और प्रोफिलैटिक यूजेस का? तो देखिए, एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज वर्सेस वॉकहार्ट लाइफ साइंस लिमिटेड। इसमें देखिए इसका क्या मतलब है, टू प्रिवेंट, टू गार्ड अगेंस्ट इट बिफोर इन मेडिसिन, प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिजीजेस, guarding against diseases, a preventive of disease, a condom, preventive treatment of disease, and serving to cure and or heal, curative concern in discovering and applying remedies for diseases। और सबसे आखिरी में देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, प्रोफिलैटिक मीन्स अ मेडिकामेंट इंटेंडेड टू प्रिवेंट डिजीजेस, अ प्रिवेंटिव मेडिसिन और कोर्स ऑफ एक्शन। तो देखिए ये किस चीज के लिए है? प्रिवेंशन के लिए है। और अगर हम हैंड सैनिटाइजर्स अगर हम जो यूज करते हैं वो हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? प्रिवेंशन के लिए, कि भाई हमको कोरोना वायरस से जो है हम इफेक्ट ना हो जाए।
इसलिए हम हैंड सैनिटाइजर को यूज करते हैं, क्योंकि उसका मतलब जो है प्रिवेंशन के लिए है। इसलिए हम इसको थेरापेटिक और प्रोफिलेटिक यूज में लेकर आते हैं, और इसको हम कह सकते हैं कि ये मेडिकामेंट है और ये 3004 में आता है। ठीक है, और कुछ ठीक है, अब हम कुछ और चीजों में बढ़ते हैं आगे कि ये 3004 में क्यों आ सकता है चैप्टर। तो देखिए, ऑर्डिनरी एंड कॉमन पार्लेंस टेस्ट है मिस्टर शिखर, इसके बाद की आप वो लगा दीजिए। हाँ जी, ये देखिए, द आइडेंटिटी ऑफ एन आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद इट्स प्राइमरी फंक्शन। What is the primary function of a hand sanitizer? The primary function of hand sanitizer is to prevent the disease of coronavirus. इसीलिए हम हैंड सैनिटाइजर खरीद रहे हैं। पहले तो वो देखिए कोई खरीदता नहीं था कोविड-19 पैंडेमिक से पहले, मार्च 2020 से तो ज्यादा तो पहले लोग कोई खरीदता नहीं था। बाद में लोगों ने खरीदना शुरू किया, और क्यों खरीदना शुरू किया? वो सिर्फ इसीलिए खरीदना शुरू किया ताकि भैया हम इससे उस वायरस से बच सके, क्योंकि इसका प्रिवेंटिव यूज है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। द टेस्ट कॉमनली अप्लाइड टू सच केसेस इज दैट हाउ इज द प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड बाय द क्लास और सेक्शन ऑफ पीपल डीलिंग विद और यूजिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज जनरली बाय इट्स फंक्शनल कैरेक्टर इन इट्स यूज दैट द प्रोडक्ट इज आइडेंटिफाइड, दैट इज द एंड यूजर टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका टेस्ट क्या है, सबसे आखिरी का जो टेस्ट है कि इसको प्रिवेंशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, सो व्हेन वी अप्लाई द टेस्ट ऑफ नेमली ऑर्डिनरी एंड कॉमन पार्लेंस and used to the goods and the entry in question, sanitizer would be covered by the entry medicaments, that is chapter heading 3004, as a said product is purchased as a preventive as well as a protective measures. ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। एक जजमेंट मैं आपको और बताता हूं, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस मैरिको इंडस्ट्रीज का। इसमें देखिए मेडिकामेंट की डेफिनेशन दी हुई है जो मैंने अंडरलाइन करी है। इससे बहुत क्लियर हो जाएगा आपको कि इसको मेडिकामेंट क्यों कह रहे हैं। एनी प्रिपरेशन कंटेनिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स टू रिमूव द रूट कॉजेज। देखिए व्हाट है रूट कॉज? रूट कॉज क्या है? वायरस। इसको हटाने के लिए, इसको इरेडिकेट करने के लिए रूट कॉज, वेदर दे आर यूज्ड फॉर इंटरनल कंजम्पशन और एक्सटर्नल एप्लीकेशन, हैज टू बी कंसिडर्ड एज अ मेडिकामेंट। ठीक है, मैं एक बार और पढ़ देता हूं। एनी प्रिपरेशन कंटेनिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स टू रिमूव द रूट कॉजेज, whether they are used for internal consumption or external application, has to be considered as medicament। तो देखिए यहाँ पे हम जो हैंड सैनिटाइजर्स को यूज करते हैं वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। हम जो है अपने स्किन पे लगा रहे हैं उसको, तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन यहाँ पे है। इसलिए मेरा जो इंटरप्रिटेशन है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो ये कहती है कि इसको हम चैप्टर 3004 में ला सकते हैं और इस पे 12% टैक्स ही लगेगा। लेकिन अगर हमको अब एक चीज और भी है कि अब हमको 3808 से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर हटाना है, हमको ये कहना है कि ये डिसइंफेक्टेंट नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या आर्ग्यूमेंट्स रख सकता हूँ? उसके लिए जो सबसे पहले एक आर्ग्यूमेंट अगर मैं रखूंगा तो वो हुआ कंसेप्ट ऑफ एडजुस्टम जनरस। अब कंसेप्ट ऑफ एडजुस्टम जनरस का मतलब होता है मीन्स ऑफ सेम काइंड और नेचर, एक जैसी चीज है। ठीक है, एक जैसी चीज है। अब मैं आपको फिर से उस स्लाइड पे लेके चलता हूँ। मिस्टर शिखर वो वाली स्लाइड पे ले जाइए जहाँ पे 3808 और 3004 लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3808 में? इंसेक्टिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, एंटी स्प्राउटिंग प्रोडक्ट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, डिसइंफेक्टेंट्स एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स। अब एक बात बताइए, इनमें से आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई होता है, या आप इसको कॉस्मेटिक की तरह यूज करते हो या किसी भी तरीके से यूज करते हो, अपने हाथ पे यूज करते हो, कहीं पे यूज करते हो, ऐसा कहीं कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको लगता है? तो फिर अगर नहीं लगता तो फिर कैसे हैंड सैनिटाइजर्स को हम 3808 में डाल दें? मुझे तो नहीं लगता कि भैया इसमें से ये जो है सब चीजें आएंगी। देखिए अभी पीछे करके कुछ प्रोडक्ट्स और भी लॉन्च हुए थे जो स्प्रे था कि अगर आपके घर में कोई मटेरियल आ रहा है तो आप उस पर स्प्रे कर दीजिए। ठीक है, तो वो स्प्रे भी जो है वो हाथ पे लगाने के लिए नहीं है, वो सिर्फ किसी सरफेस पे लगाने के लिए, नॉट ऑन द ह्यूमन स्किन। तो उसको हम डिसइंफेक्टेंट बोल सकते हैं, लेकिन हैंड सैनिटाइजर्स को हम डिसइंफेक्टेंट कैसे बोलते हैं? ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। सीरियल नंबर 12 और शेड्यूल के और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट
कहता है कि substances intended to be used for destruction of vermin or insects which cause disease in human beings or animals are known as disinfectant. चलिए मैं ये बात अगर मैं मान भी लूं कि ठीक है ये कह रहे हैं ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स पे ही लगता है, लेकिन ये वर्मिन और इंसेक्ट्स को मारने के लिए है ना, वायरस को मारने के लिए तो कहीं नहीं है ये डिसइंफेक्टेंट, तो कैसे इसमें आ जाएगा? Therefore, if we go by the above explanation, then by the rule of adjustum generis, then disinfectant is something which is similar to insecticide, which is used for destruction of vermin or insects. Therefore, on perusal of the above, it could be said that disinfectants are the only products which are used for killing insects or vermin, that is the creatures which are easily visible from the naked eye, but not the virus. Similarly, the items mentioned in chapter 3808 are used for killing creatures which are easily visible from naked eye, but not the virus. लेकिन देखिए अगर इसमें नेकेड आई से अगर विजिबल भी नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वायरस को मारने के लिए, वायरस को मारने के लिए उनमें से कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, वो मारने के लिए वर्मिन को या फिर इंसेक्ट्स को। तो फिर ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कैसे 3808 में आ जाएगा? मेरे को तो अभी तक ये समझ नहीं आया कि 3808 में प्रोडक्ट कैसे आएगा, क्या इसके पीछे लॉजिक है? क्योंकि देखिए अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी आ रहा है या कोई ऑर्डर भी आ रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड उसका होना चाहिए ना कि ठीक है भैया इसमें आ रहा है, इसमें आना चाहिए। लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि जो मैंने इतनी चीजें जो डिस्कस अभी आप लोगों से करी 3808 में आना चाहिए कि 3004 में आना चाहिए, तो 3004 में तो आने के लिए और भी अच्छे से तरीके से क्वालिफाई हो रहा है, लेकिन 3808 में तो आने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है। नाउ मूविंग अहेड, अब क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ और भी थोड़े पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि एक जजमेंट थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, कमर्शियल टैक्स वर्सेस डावर ब्रदर्स। उसमें ये था कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का कोई भी जो एप्लीकेशन होगा ना, वो आप क्लासिफिकेशन केसेस में कर सकते हैं। तो जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के ही ये जो क्लासिफिकेशन जो है का जो इंटरप्रिटेशन है किसी प्रोडक्ट को लेकर, क्योंकि देखिए हैंड सैनिटाइजर हो या कोई भी और डिसइंफेक्टेंट हो, इसमें आपको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक के अंडर जो है लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इसका भी जो इंटरप्रिटेशन इसमें जो है वो आपके जीएसटी के क्लासिफिकेशन या इनडायरेक्ट टैक्स के प्रोडक्ट्स में जो भी क्लासिफिकेशन होता है उसमें लग सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक जजमेंट थी सीसीई वर्सेस मिनवुल रॉक फाइबर्स। उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी एंट्री को लेकर डिस्प्यूट होता है ना, तो जो भी एंट्री विच इज बेनिफिशियल टू द एसएससी वुड बी अप्लाइड। In case of any dispute, an entry which is beneficial to the SSC requires to be applied. तो अब जैसे आपको लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैं एक ट्रेडर हूं या मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने जो है पहले देखा कि टैरिफ खोल के देखा कि मैं किस में फॉल करूंगा। अब मेरे को तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे को पास एक बेसिस भी है कि मैं भैया लोअर रेट ऑफ टैक्स में फॉल होता हूँ, ठीक है, और वो मेरे को बेनिफिशियल भी है। तो इस जजमेंट के अनुसार मेरे को उस चीज का बेनिफिट मिल सकता है। Therefore, it could be inferred by the above discussion that entry 3004 is more specific and more beneficial to the SSCs against the word disinfectant. Also, the said product would not come under the ambit of similar products, as in the absence of any limitation or qualification as to different kinds of disinfectants. There is no reason to read in any such qualification and limit the entry to particular kinds of disinfectants. तो ये जो पूरा डिस्कशन हम लोगों ने जो किया, ये इसलिए था कि हम कौन कौन सी जो है आर्गुमेंट्स रख सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक बेनिफिशियल एंट्री में आएगा, एंड द बेनिफिशियल एंट्री इन दिस केस इज 3004। ठीक है, तो ओवर टू यू शिखर। Thank you for the enlightening words, sir. Now it's time for the question answer session. So all the attendees on the Google Meet can post their questions in the chat box. Sir, I'll be starting with the question we received on the mail by the attendees before the conference. So the first question is from Ullas Mehta. He says, sir, can you please differentiate between circular and a notification? Okay, a very good question. देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन की एक लॉ में वो होती है, बाइंडिंगनेस होती है। अगर आप सीजीएसटी ऐप देखेंगे तो उसमें कई जगह लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट
have to bring the notification for imposing so much of tax. कई जगह पे नोटिफिकेशन वर्ड आ रहा है. नोटिफिकेशन इसलिए लाना जरूरी है क्योंकि वो ऑफिशियल गैजेट पे आता है जिसकी लॉ में सैंक्टिटी होती है. तभी जो है कोई भी चीज आगे बढ़ सकती है. लेकिन सर्कुलर जो होता है ना, सर्कुलर इज ओनली यूज्ड फॉर द इंटरनल डिस्कशन. जैसे रेवेन्यू अपना कोई सर्कुलर ले आया, रेवेन्यू अगर अपना कोई सर्कुलर लाता है तो रेवेन्यू को ही वो बाइंड करेगा, मेरे को या एसएससी को या किसी को बाइंड नहीं करेगा. इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं कि सर्कुलर के ऊपर जो सर्कुलर है, सर्कुलर इज नॉट बाइंडिंग ऑन एसएससी, इट इज ओनली फॉर द इंटरनल रेफरेंस ऑफ द डिपार्टमेंट, दैट इज द रेवेन्यू डिपार्टमेंट. तो ये है. और नोटिफिकेशन एसएससी पे भी लगेगा और डिपार्टमेंट पे भी लगेगा, दोनों पे लगेगा. तो नोटिफिकेशन तो एक लॉ हो गया. अगर आप जीएसटी एक्ट पढ़ेंगे उसमें कई जगह वर्ड आ रहा है नोटिफिकेशन, लेकिन सर्कुलर या क्लैरिफिकेशन वर्ड नहीं आता कहीं पे. Thank you, sir. The second question comes from Chirag Picholia. He asked, what is the authority of advance rulings, AAR? देखिए, एडवांस अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स एक ऐसी बॉडी है कि जिसपे अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पे अगर कोई डाउट है, या फिर आपको किसी रेट ऑफ टैक्स पे डाउट है, या आपको लगता है कि मैं कोई गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूँ, उस पे कोई डिस्प्यूट है, उस पे मेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो मैं AAR के पास जाके एक क्लैरिफिकेशन ले सकता हूँ. वहाँ पे पूरी पिटीशन फाइल करूँ और वहाँ पे एक ऑर्डर मिल जाएगा मेरे को, जो कि ये कहेगा कि आपके केस में ये चीजें हो सकती हैं, सो एंड सो चीजें हो सकती हैं. लेकिन इसमें ये चीजें भी जानने वाली हैं कि जो AAR का जो ऑर्डर होता है ना, जैसे मैंने शुरू में बताया था, वो सिर्फ एसएससी पे जो एप्लीकेशन फाइल करे उसी में बाइंडिंग होगा, लेकिन और किसी एसएससी पे बाइंड नहीं होगा. क्योंकि AAR का ये जो ऑर्डर है ना, ये कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं है. दिस इज नॉट अ जुडिशियल ऑर्डर, दिस इज, यू कैन से इट एज अ काजी जुडिशियल ऑर्डर. अगर यही ऑर्डर अगर ट्राइब्यूनल का होता या फिर आपका हाई कोर्ट का होता या सुप्रीम कोर्ट का होता, तब सबके ऊपर बाइंड करता. लेकिन ये अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स का एक ऑर्डर है, ये आपके ऊपर बाइंड नहीं करेगा. AAR का कोई भी ऑर्डर होता है उसके लिए आप अपील फाइल कर सकते हो, जिसका नाम है एपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स. वहां पे आप जा सकते हो, ठीक है. लेकिन अगर वहां पे भी नहीं हुआ तो फिर आप या तो फिर आपके पास फिर एक ऑप्शन रह जाता है हाई कोर्ट में रिट फाइल करने का, उसके बाद कोई अपील नहीं. Thank you, sir. The next question comes from Rohan Samar. He asked, can you give some more example of such disputed classifications of products? ओके. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्लासिफिकेशन के कुछ और केसेस. देखिए, क्लासिफिकेशन के और भी जैसे केसेस में आप लोगों को बहुत छोटे छोटे एग्जांपल देके समझाता हूँ. जैसे कोकोनट ऑयल है. कोकोनट ऑयल कुड बी कंसिडर्ड एज एन एडिबल ऑयल एज वेल एज एन हेयर ऑयल. ठीक है, कुकिंग ऑयल की तरह भी आप उसको यूज कर सकते हो, हेयर ऑयल की तरह भी यूज कर सकते हो. तो जैसे 2017 से पहले जीएसटी एक्ट जब नहीं आया था, तो वैट एक्ट में इसको लेके थोड़ा संग्राम होता था, एक्साइज में भी होता था कि भाई ये जो कोकोनट ऑयल है ये होता क्या है, भाई हेयर ऑयल है या फिर इसको आप कुकिंग ऑयल की तरह यूज करोगे. तो उसमें आप झगड़े कैसे सॉल्व होंगे भाई. उसमें देखिए इस तरीके से देखा जाता था कि एक जोग्राफिकल लिमिटेशन पे, जोग्राफिकल लिमिट ऑफ पर्टिकुलर जोग्राफिकल लिमिट पे किसी प्रोडक्ट को आप किस तरीके से देखते हो. जैसे कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल मोस्टली हम नॉर्थ इंडिया में उसको एज एन हेयर ऑयल यूज करते हैं, ठीक है. और वही अगर आप केरल में चले जाओ, साउथ में और कहीं भी चले जाओ, तो कुकिंग ऑयल की तरह उसको यूज किया जाता है. तो उस तरीके से उसकी क्लासिफिकेशन डिटरमिन करी जाती है, क्योंकि वहां पे कॉमन पार्लेंस, जैसे मैंने कॉमन पार्लेंस बताया था, कॉमन पार्लेंस का एक और एस्पेक्ट है जोग्राफिकल लिमिटेशन. किस तरीके से ऑर्डिनरी पब्लिक एक पर्टिकुलर जगह की समझती है किसी चीज. ये तो देखिए शिखर ये हो गया. दूसरा मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जैसे एक डिस्प्यूट था, मैंने उस पर काम किया था कि जैसे आपके घर में कभी भी कोई भी प्लास्टर होता है, सीमेंट का प्लास्टर होता है, तो एक तो मजदूर आके सीमेंट पे वाटर मिलाएगा, मिट्टी मिलाएगा और उसको बना देता है. तो एक तो वो उस तरीके का सीमेंट होता है. तो एक तरीके का सीमेंट होता है जो आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स में यूज करते हो, जहाँ आप देखते हो कोई रोलर चलता है. लेकिन उस सीमेंट और उस सीमेंट में थोड़ा सा फर्क होता है. जब घर में एक सीमेंट यूज करते हो या फिर जो बाहर जो बिल्डिंग्स में सीमेंट यूज होता है, दोनों में बड़ा फर्क है और दोनों की टैक्सेबिलिटी बड़ा डिस्प्यूट होता है, क्योंकि एक को कहते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट, एक को कहते हैं मिक्स कंक्रीट. अब जो बिल्डिंग्स वगैरह में जो यूज होता है वो बहुत हाई क्वालिटी का सीमेंट होता है, जिसमें कई तरह के प्लास्टिसाइजर्स, केमिकल्स और जो पानी भी होता है वो भी काफी हाई स्टैंडर्ड का होता है. वो उसमें मतलब कि कई तरीके की चीजें पड़ी होती हैं. तो इस तरीके से हम डिटरमिन करते हैं कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से, कि कैसे एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग है, और जैसे ही एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग होता है
उसकी रेट ऑफ टैक्स की एप्लीकेबिलिटी भी बदल जाती है। Thank you, sir. The next question is from the student Shubham Mathur. He says, is there any prescribed law for tax assessment? टैक्स असेसमेंट किस तरीके का टैक्स असेसमेंट, मतलब जीएसटी का तो आपका जब भी आप रिटर्न्स फाइल करते हैं तो फिर वही एक तरीका है। ये टैक्स असेसमेंट किसकी बात कर रहा है, जीएसटी की, इनकम टैक्स की? Sir, possibly the question means that is there any written law on how to classify different kind of taxes? नहीं, वही मैंने बताया ना कि देखिए क्लासीफाई का ये जो टैरिफ है, टैरिफ में आपका सारा का सारा पूरा वो दिया हुआ है, रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। और अगर इसमें कोई डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट में फिर आपको जाना पड़, आपको अगर मान लो एक नोटिस आता है डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपको 18% टैक्स देना है, बट अकॉर्डिंग टू यू आपके हिसाब से 12% टैक्स देना है, तो फिर मैंने जितनी चीजें बताई, फिर देखिए मैं आपको एक और बताता हूँ कि अगर आप रेट ऑफ ये 1/2017 का नोटिफिकेशन जब खोलेंगे ना, सारे टैरिफ के नीचे पूरे आखिरी पेज पर एक आता है कि कस्टम टैरिफ एक्ट के हिसाब से इसके इंटरप्रिटेशंस होंगे, वो एक तरीका है। और उसके बाद जो हमने जुडिशियल प्रिंसिपल्स बताए आपको, वो एक तरीका है कि वो आप अपने रिप्लाई पे लगा सकते हो कि व्हाट आर द बेसिस कि मेरे को लगता है ये टैक्स लगेगा और जो डिपार्टमेंट ने टैक्स बताया वो नहीं लगेगा। Thank you, sir. This was all on the Q&A session. Now I would request a distinguished speaker, Abhinav Saxena, to please come for the concluding remarks. Okay, thank you, Shikhar. Thank you, Mr. Bharat, for explaining us such complex issues of COVID-19 products on GST on COVID-19 products. So conclusion में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ये essential item in central government has classified as essential items. तो अगर एसेंशियल आइटम आपने घोषित करा है इस चीज को, तो हमारी एक हम्बली रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कि कुछ ना कुछ करके इसको एग्जाम कर दे या फिर एक स्लैब में ले आए जो जिसकी परसेंटेज बहुत कम हो, जैसे 12% से पहले हो या 5% पे करके ले आए इस स्लैब पे। बिकॉज अभी एक साल तक 2021 में एक हमारा ये कॉमन एक हमारे साथ नहीं रहता है। मैं कहीं भी जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, मार्केट जाता हूँ, हैंड सैनिटाइजर इज लाइक हैंकी जैसे हम लोग रखते हैं, उसी तरह की ये चीज है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है और इस पे आम जनता को बहुत दिक्कत होती है, एंड कंज्यूमर को बहुत फायदा होगा। यही मेरा एक कहना है और यही एक सुझाव है मिनिस्ट्री से कि इसको थोड़ा सा लाइफ सेविंग आइटम है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इस चीज पे अमल करा जाए। क्योंकि अगर हम देखें संविधान के आधार पे भी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, तो उसके अंदर भी हम लोग ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, इंटरप्रिटेशन है हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी इस तरह के। तो ये करना चाहिए और यही हमारा सुझाव है प्रेकुलम के माध्यम से भी, और इस वेबिनार को करने का यही हमारा उद्देश्य है कि ये सब चीजें होनी चाहिए और आगे सरकार अगर इस चीज को सुने तो हम यही हमारा वो रहेगा। तो शिखर, ये मेरा कंक्लूजन में मेरी तरफ से यही है और आप आगे स्टार्ट कर सकते हैं। Thank you, sir, for such enlightening words. Now I would present the vote of thanks to the speakers and the attendees. We thank all the attendees and our distinguished speakers on behalf of Team Prakulam for making this webinar a successful webinar. And I hope that this webinar was a great learning experience for all the members associated with it, be it the attendees or the speakers. E-certificates will be provided to the attendees, to all the attendees. You can mail us on the email IDs appearing on your screen for any further webinar on GST, on tax, or any other legal field you feel like. Thank you. I have an announcement, Speaker. Hello. Yes, sir. We are going for the webinar on Narcor. In recent time, last 3-4 months, there are lots of hungama regarding narco and narco substance. Yes, we are going for the webinar on that direction on last leg of second week of this month, Feb. Okay, sir. So the detailed notification will be announced and emailed to all the participants. So be ready for that webinar. That will be a very fruitful, informative for the actual status in India related to narco substance. Okay.
Okay, sir. तो एक बार इसको भी आप अपने तरफ से फिर से अनाउंस कर दो। Okay, sir. So I would like to inform all the attendees that next webinar by the team Praco Learn will be on the subject NDPS Act, Narcotics and Psychotropic Substances Act 1986, which is recently in news. So we will be discussing all the possibilities, all the legal fields, all the legal arguments regarding that law. Thank you. This is me, Shikhar Bhardwaj, signing off. Thank you. Thank you, Shikhar. Thank you.